हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आप लोग का एक बार फिर से वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। और लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंजाइम, हाउ एंजाइम वर्क्स, एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वर्किंग ऑफ एन एंजाइम, टेम्परेचर, pH, inhibiting factor. We have discussed all that in the last lecture. So in this lecture we are going to discuss classification and nomenclature of enzymes. So let's start classification and nomenclature. Thousands of enzyme. चलिए हम लोग चालू करें आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक classification and nomenclature. Thousands of enzymes have been discovered, isolated, studied. हजारों की संख्या में आज तक एंजाइम्स डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेट किए जा चुके हैं, स्टडी किए जा चुके हैं. मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप. इन एंजाइम्स को हम लोग डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज. इस बिहाफ पे कि वो किस तरह के रिएक्शन को कैटालिसिस कर रहे हैं. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज वी कैन डिवाइड और क्लासीफाई द एंजाइम्स इनटू डिफरेंट क्लासेस. एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट क्लासेस. तो एंजाइम्स की 6 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस बताई गई हैं एंजाइम की. एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट क्लासेस, ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय अ 4 डिजिट नंबर. 6 क्लासेस में बांटा गया है और हर क्लास के 4 to 13 सब क्लासेस हैं. एंजाइम्स आर डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट क्लासेस एंड ईच क्लास विथ 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम अकॉर्डिंगली बाय अ 4 डिजिट नंबर. और उनको हम लोग 4 डिजिट नंबर से कोड से उनको हम लोगों ने नेम किया. पहला हमारा है ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज. ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंड डिहाइड्रोजिनेजेस फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट क्लास कह लीजिए. फर्स्ट क्लास है हमारी, द वेरी फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडो रिडक्टेजेस or dehydrogenases. Enzymes which catalyze oxidoreduction reaction between two substrate, say for example substrate S and S dash. Those type of enzymes are categorized into oxidoreductases. S reduce react with S dash oxidize. So after the reaction, S reduce get converted into X oxidized form. The reduced form of X S now get converted into oxidized form and S dash oxidized now get reduced S dash reduce. So this type of enzymes which take part in this type of chemical reactions in which one substrate get reduced and another substrate get oxidized, this type of reactions are called as oxidoreductases. The enzyme which takes part in this type of reactions are categorized as, classified as oxidoreductases or dehydrogenases. Okay, the next class, transferases. Enzymes catalyzing a transfer of group. Transfer of group. Say for example G other than hydrogen, but this group should be other than hydrogen. So G between a pair of substrate S and S dash. So prior to chemical reaction, G is attached to the S, but after the reaction get completed, now G get transferred from S to S dash. S plus S dash G. Now this G, group G, here G is the symbol for group. This group get transferred from S to S dash. From S to S dash. Okay, this type of enzymes which take part in this type of chemical reactions are classified as transferases. Causes a transfer of group, transfer of a group from one substrate to the another substrate. Transferases. The third category is, third class is hydrolases. So first class is oxidoreductases, second is transferases, third is hydrolases. Enzymes catalyzing hydrolysis of ester bond or ether bond or peptide bond or glycosidic bond.
और bond between carbon carbon, bond between carbon halide and bond between P and N. This type of enzymes which causes the breakdown of ester bond or ether bond in the presence of water, hydrolysis of water, hydrolysis of ester bond or ether bond. Enzymes that catalyzing the hydrolysis of ester bond, ether bond or peptide bond, glycosidic bond. Glycosidic bond, you will find the glycosidic bond between monosaccharides. When the monosaccharide get condensed and monosaccharide undergo polymerization, produces polysaccharide. In a polysaccharide, monosaccharides are linked with each other by means of glycosidic bond. In a polypeptide chain, different amino acids are linked with each other by means of peptide bond. Ester bond, when alcohol get esterified in the ester formation, when alcohol get esterified with carboxylic acid and ester is get formed, तो ये एस्टर बॉन्ड बनता है लिपिड सिंथेसिस में, एस्टर बॉन्ड बनता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन के सिंथेसिस में. अब उनका अगर ब्रेक डाउन हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, those types of enzyme which causes the breakdown of ester bond, ether bond, peptide bond in the presence of water, those types of enzymes are categorized as, classified as hydrolases. Okay, liases पे आइए, fourth one. So first one is oxidoreductase or dehydrogenase, second is transferase, third is hydrolase, fourth is liases. Enzymes that catalyze removal of groups from substrates by mechanism other than the hydrolysis, leaving double bond. Those enzymes which causes the removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis. Removal of group enzymes causes the removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis. हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, सम अदर मैकेनिज्म हो रहा है, लेकिन रिमूवल ऑफ ग्रुप हो रहा है, लिविंग डबल बॉन्ड, और उनके बीच में डबल बॉन्ड रह जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइएजेस बोलेंगे. दिस इज द फोर्थ क्लास. ऑक्सीडोरिडक्टेज फर्स्ट, ट्रांसफरेज इज सेकेंड, हाइड्रोलेज इज थर्ड एंड लाइएजेस इज द फोर्थ क्लास. Isomerases enzymes are those enzymes includes enzymes catalyzing interconversion of optimal isomer और geometric isomer, positional isomer. तो केमिकल स्ट्रक्चर उसका, केमिकल फार्मूला वही रहेगा कंपाउंड का, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा. तो ये आइसोमराइजेशन हो गया. इंक्लूड्स ऑल इन कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिमल isomer, geometric isomer or positional isomer. These enzymes are categorized as isomerases. Includes all enzymes catalyzing interconversion of optimal isomer, geometric isomer or positional isomer. Ligases. Now the next ligases. Enzyme catalyzing the linking together of two compounds. Enzyme catalyzing the linking together of two compounds. That is enzyme which catalyzes joining of carbon oxygen, carbon sulfur, carbon nitrogen, phosphorus oxygen etc. वो एंजाइम जो ज्वाइन करवा रहे हैं दो ग्रुप को, दो कंपाउंड को. एंजाइम्स कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड कैटेगराइजेज एज लाइगेजेस. ओके, एंजाइम विथ कैटालाइजिंग ज्वाइनिंग ऑफ carbon oxygen, carbon sulfur. So first one is oxidoreductase, dehydrogenases. Second one is transferases. Third one is hydrolases. And the fourth one is liases. Fifth isomerases and sixth ligases. इनको आपने इसी सीरीज में याद रखना है, सीरीज ना बदलिएगा, ये फिक्स है. ऑक्सीडोरिडक्टेज फर्स्ट है हमारी क्लास, ट्रांसफरेजेस सेकंड है, हाइड्रोलेजेस थर्ड है, लाइएजेस फोर्थ है, उसके बाद आइसोमरेसेस और फाइनली लाइगेजेस. ठीक है जी. ऑक्सीडोरिडक्टेज वो वाले एंजाइम हैं
जो इस तरह के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा, एक सबस्ट्रेट रिड्यूस होगा। ट्रांसफरेजेस में कॉज कर देगा रिमूवल ऑफ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप कर देगा फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। हाइड्रोलाइसिस में एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। लाइएजेस में एंजाइम दैट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप। यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था एक से दूसरे पे, यहाँ पे रिमूवल हो गया, तो ये रिमूवल ऑफ ग्रुप, अगर ये ग्रुप रिमूव हो गए तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कॉजेज आर रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से रिमूव कर दिए ग्रुप और लिविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड्स। एंड द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। आइसोमरेसिस में केमिकल स्ट्रक्चर बदल गया है, केमिकल फार्मूला वही रहा, तो ऑप्टिकल हो सकते हैं आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर होते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमर। लाइगेजेस में कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, दोज एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड एज लाइगेजेस। तो इससे रिलेटेड बातें और थोड़ी सी जान लें, आइए। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले तो आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए इसको प्रपोज किसने किया है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961, ये लाइन यहाँ से उठाइए अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए। तो हु प्रपोज द क्लासिफिकेशन, या बॉडी जो इसको रेगुलेट कर रही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961 में नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया गया, क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया। एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस based on the type of reaction they catalyze, each with 4 to 13 subclasses, name according to 4-digit number। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री लिख। अब पहले वाला हमारा देखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज, एस रिड्यूस प्लस एक्स ऑक्सीडाइज, ये आपकी बुक में दिया है। डिहाइड्रोजिनेस क्या है, डिहाइड्रोजिनेस ये है, AH2 डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, 2H रिमूव हो गया, AH2 ब्रोकन डाउन इनटू A+2H, ये हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है जी, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड डिहाइड्रोजिनेसिस एग्जांपल आपने समझ लिया। आगे चलिए, आगे है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस में ट्रांसफ़र हो रहा है ग्रुप का, तो ग्रुप जुड़ा हुआ था S सबस्ट्रेट से, ट्रांसफ़र होके वो आ गया S गैस सबस्ट्रेट पे, S अलग हो गया और S गैस सबस्ट्रेट से ग्रुप अटैच हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ग्लूटामेट एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसएमिनेज, ट्रांसफर द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट टू पाइरुवेट ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एलानिन। लिख लीजिए ये, एक सेकंड को मेरा ये होल्ड करके लेक्चर। ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसएमिनेज, ट्रांसएमिनेशन अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र कर रहा है ये एंजाइम ग्लूटामेट से पाइरुवेट पे ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एनालिन। थर्ड वन पे आइए, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के एग्जांपल हमारे एमाइलेज, सुक्रोज, लैक्टेज, माल्टेज। तो माल्टेज की प्रेजेंस में माल्टोज का इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलाइसिस हो गया और 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन गए। ठीक है जी, तो ग्लूकोज C6H12O6, तो ये हमारा था C12H22O11 माल्टोज, C12H22O11 प्लस H2O, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज। क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2C6H12O6। लिख लीजिए एक एग्जांपल इसका हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, चलूँ आगे। चौथा हमारा लाइएजेस, एंजाइम दैट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड। तो ये वहाँ पे आपको जो दे रखा है, इन्होंने ये एग्जांपल दे रखा है एक्स और वाई, तो जब ये रिमूव हो गए इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया एक्स और वाई। ठीक है जी, एक और लिख लीजिए एग्जांपल, एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बिसफॉस्फेट का या डाईफॉस्फेट को तोड़ देता है, उसका ब्रेकडाउन कर देता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अगर आपको याद हो किस में, ये स्टेप मिल रहा है ग्लाइकोलिसिस में। तो एल्डोलेज एंजाइम है, एल्डोलेज किस में आ रहा है, लाइएजेस की कैटेगरी में आ रहा है। लिख लीजिए,
तो मेरी ये रोक के आप अपना 1 सेकंड को इसको नोट कर लीजिए अपने एनसीईआरटी में। चलो आगे चलिए। आइसोमराइजेशन आपको पता ही है, आइसोमराइजेशन कर देंगे तो केमिकल स्ट्रक्चर उसका रिफॉर्म हो गया, केमिकल फार्मूला वही है, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है। ठीक है जी। एंजाइम्स विच कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड वो कहला रहे हैं लाइगेसेस। ख़त्म हो गए आपके इसमें एंजाइम की क्लासिफिकेशन और कैटेगरी। आइए क्वेश्चन कुछ देख लें। हमेशा की तरह हम लोग जो क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कुछ लगाए जाए तो आगे बढ़ा जाए। एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट, एंजाइम क्या करता है? इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम, डिक्रीज इन रिएक्शन टाइम, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में ये आपका सबस्ट्रेट, ये आपका प्रोडक्ट और ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारा ट्रांजिट स्टेट स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट के लेवल में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वही एक्टिवेशन एनर्जी है। ये इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट हो, ये अगर पाथ फॉलो कर रहा है तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। सबस्ट्रेट इनिशियल शुरुआत वहीं से हुई, टर्मिनेशन वहीं हुआ, डेस्टिनेशन वही है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना है। बस अब पाथ ये अल्टरनेट पाथ है उसने अचीव कर लिया जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लेस रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी कंटेंट ऑफ हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रेट। तो रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी कर देता। ठीक है ना, याद है? नहीं याद है तो लेक्चर देखो पिछला। एंजाइम एग्जिस्ट इन ऑल सेल्स, इन द सेल्स एज एंजाइम सेल्स में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ठीक है। तो कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोकोलाइड, कोलाइड। डी इज द राइट आंसर। थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, याद कर लो। फ्यूमरेस बिलोंग टू द विच क्लास? फ्यूमरेस किस क्लास को बिलोंग करता है? तो हाइड्रोलाइसिस को बिलोंग करता है। फ्यूमरेस कॉज कर देगा कन्वर्जन फ्यूमरेस का किस में? दैट कैटालाइजेज द रिवर्सिबल हाइड्रेशन। रिवर्सिबल हाइड्रेशन कर दिया, फ्यूमरेट को बदल दिया मैलेट में। तो फ्यूमरेस हमारा किस कैटेगरी में आ रहा? फ्यूमरेस हमारा हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एंजाइम एग्जिस्ट इन कोलाइडल स्टेट। इनकरेक्ट पूछ रहा। जी हाँ, ये तो करेक्ट है। एंजाइम्स आर कैटालिस्ट, करेक्ट है। एंजाइम कैन कैटालाइज एनी रिएक्शन, एनी रिएक्शन नहीं, एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को। यूरिएज इज एन एंजाइम, ठीक है। यही आपका स्टेटमेंट गलत है भाई। एक एंजाइम किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही करेगा ना कैटालिसिस, हर किसी को थोड़ी ना कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, इसको अपन नेसेसरी छोड़ो। एन एंजाइम विच कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एल्डोज शुगर टू कीटोस। जो एल्डोज शुगर को कीटोस शुगर में बदल रहा, क्या कर रहा है मेरे भाई? आइसोमराइजेशन कर रहा। और क्या कर रहा? किस में आएगा? आइसोमराइजेज में आएगा। एन एंजाइम विच कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एल्डोज शुगर टू कीटोस वुड बी क्लासिफाइड एज, उसको हम किस में क्लासीफाई करेंगे? उसको हम क्लासीफाई करेंगे आइसोमरेज। ठीक है, ओके, समझ में आ गई ना बात? चलूँ आगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ। कार्बोनिक हाइड्रेस किसका एग्जाम्पल है? लाइएज का एग्जाम्पल है। Liase are the enzyme which catalyzes breakdown reaction without hydrolysis. Liases are classified as EC4 in the EC number classification of enzyme. चौथे नंबर की कैटेगरी में हमारा आ रहा लाइएजेस। ठीक है जी। लाइएजेस क्या कर रहे थे? क्या आपको याद है? लाइएजेस कर रहे थे चल रहा हूँ बस 1 सेकेंड।
लाइएजेस क्या कर रहे थे? लाइएजेस एंजाइम दैट कैटालाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट से ग्रुप को रिमूव करा रहे थे बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहे थे, लेकिन सबस्ट्रेट से क्या करवा रहे थे? रिमूवल ऑफ ग्रुप पूरे का पूरा रिमूव करवा दिए दे रहे थे। ठीक है जी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैसा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारा लाइएजेस ग्रुप में आ रहा है। लाइएजेस आर द एंजाइम विच कैटालाइजेस ब्रेकडाउन रिएक्शंस विदाउट हाइड्रोलिसिस, बगैर हाइड्रोलिसिस के ब्रेकडाउन रिएक्शन करवा रहा था जी। तो आंसर आपका हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। लिख लो, ये आ सकता है इस बार के क्वेश्चन में। कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेस्ट नोन एग्जांपल फॉर लाइएजेस। अब आखिरी में आके हम लोग आ गए केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम पे आ गए। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हम लोग फिर वापस चले अपने एनसीईआरटी, पहले अपनी जाके बुक पढ़ाएं, फिर आते हैं इधर। अब हम लोग का आखिरी सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है। कोफैक्टर पे आइए, लगभग हर साल आता है। तो आपको बायोमॉलिक्यूल में जो क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है, एक तो इसी सेक्शन में आपको कोफैक्टर से, कोफैक्टर को एंजाइम और ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम से आपको कैसे एंजाइम पढ़ लीजिएगा और सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट पढ़ लीजिएगा जरूर से, बाकी तो फिर रब रखा। ठीक है, तो कोफैक्टर्स पे आइए। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम लोगों ने बात करी थी कि भाई एंजाइम्स जो है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, डबल पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने देखा था कि भाई ऐसी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन या डबल पॉलीपेप्टाइड चेन या चार जितने भी हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है और दो या चार भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, या तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हो सकता है। However, there are number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केवल पॉलीपेप्टाइड चेन्स से बात नहीं बनती, उसके साथ सर्टेन नॉन प्रोटीन पार्ट भी एसोसिएट होता है, जुड़ता है, तब ये एंजाइम एक्टिव होता है। एंजाइमेटिकली मतलब तब ये काम करने लायक एक्टिव होता है, कैटालिटिकली एक्टिव हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। तो प्रोटीन पार्ट है और सर्टेन नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम catalytically active. In this instances, the protein part of the enzyme is called apoenzyme। और प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर बना देगा आपका होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को हम लोग एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कोफैक्टर, और बन जाएगा हमारा होलो एंजाइम, कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम बन जाएगा। कोफैक्टर फर्दर तीन तरह के हैं। अब कोफैक्टर फर्दर तीन तरह के हैं, तो हमारा एंजाइम जरूरी नहीं केवल पॉलीपेप्टाइड चेन हो, प्रोटीन हो। तो पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं एपोएंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं कोफैक्टर। जब ये आपस में एक दूसरे से बाउंड हो गए तो ये हो गया होलो एंजाइम, एंजाइम एक्टिव हो गया। अब इसमें एपोएंजाइम भी है, कोफैक्टर। ये कोफैक्टर फर्दर हम इसको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में आइडेंटिफाइड। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटालाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटालाइन। पीसीएम पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप करना चाहते हो आईआईटी। हम लोग पीसीबी के मास्टर हैं। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर एंड मेटालिक आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम, और ये बड़ी टाइटली बाउंड होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स फिजिक्स आपके लिए बड़ी टाइट है, बड़ी टफ है, तो वही चीज़ है कि ये टाइटली बाउंड है।
टाइटली बाउंड है एपो एंजाइम से तो उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज विच कैटालाइजेज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज जो कैटालिसिस कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ब्रेक डाउन की वाटर और ऑक्सीजन में। हीम इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसमें आप देखेंगे कि हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। साथ में एक्टिव साइट की, एंजाइम की एक्टिव साइट का पार्ट भी है हीम। प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम का जिक्र यहाँ पे आया, जो कि आपको पेरोक्सीडेज या कैटालेज में मिल रहा, जो ब्रेक डाउन करता है किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर में और ऑक्सीजन में। उसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है और एक्टिव साइट बनवाता है एंजाइम की। तो ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में जानकारी। अब हम लोग आते हैं को एंजाइम पे। ठीक है जी, चलिए को एंजाइम पे चलें। को एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिट। को एंजाइम भी हमारे क्या है, कोफैक्टर हैं, लेकिन ये ऐसे कोफैक्टर हैं जो ट्रांजिट केवल कुछ समय के लिए जुड़ते हैं। जब एपो एंजाइम के साथ जुड़े, एंजाइम ने काम किया, फिर ये अलग हो गए। यूजली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, तो कैटालिसिस के दौरान ये उससे जुड़े फिर अलग हो गए। फर्दर मोर को एंजाइम सर्व्स एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम। साथ में एक ही को एंजाइम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में कोफैक्टर की तरह काम कर सकता है, एक ही को एंजाइम। फर्दर मोर को एंजाइम सर्व एज कोफैक्टर in a number of different enzyme catalyst reaction. The essential chemical compounds of many coenzyme are vitamin। और ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि कोएंजाइम ये जो है उसमें ज़्यादातर विटामिन हैं जो कोएंजाइम की तरह काम कर रहे हैं। जो केमिकल कंपाउंड है वो विटामिन हैं। एग्जाम्पल कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन। तो एग्जाम्पल के तौर पे कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसमें क्या मिल रहा है, विटामिन नियासिन मिल रहा है जो कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है। ओके जी, तो कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये दोनों कोफैक्टर अलग अलग तरह के। कोफैक्टर 3 हैं हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर को PCM प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये टाइटली बाउंड है और ये उससे फॉर टाइम बिंग ट्रांजिटली बाउंड होता है। और कोफैक्टर जो कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है, हम देखेंगे सर्टेन कोफैक्टर ऐसे हैं जो अलग अलग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, एक ही कोफैक्टर। जैसे कि आपका एग्जांपल, और ज़्यादातर ये केमिकल कंपाउंड्स जो कोएंजाइम की कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें विटामिन होता है। एग्जांपल के तौर पर निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में आपका नियासिन विटामिन है जो कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है, कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है। ओके, अब आप आइए मेटालाइन पे। तीसरे वाला हमारा मेटालाइन। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड मेटालाइन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन एट द एक्टिव साइट। तो बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनको मेटालाइन की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है उनकी एक्टिविटी के लिए, और ये मेटालाइंस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं विद साइड चेन एट द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे विद द साइड चेन, एक्टिव साइट पे साइड चेन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम की साइड चेन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ही रहे हैं एक्टिव साइट पे, और साथ ही साथ ये मेटालाइन क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं विद सबस्ट्रेट। तो एंजाइम के साथ भी मानिए जिंक है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे भी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं साइड चेन के साथ के साथ सबस्ट्रेट पे भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, उसमें जिंक मेटालाइन जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है। जिंक इज द कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो सर्टेन जगह पे आप देखेंगे कि मेटल्स की ज़रूरत होती है एंजाइम के फुल्ली फंक्शन होने में, काम करने में। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक
जो हमारा कार्बोक्सीपेप्टिडेज का प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज का एक्टिवेटर है, कोफैक्टर की तरह काम करता है। तो जिंक क्या कर रहा है, ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज के साइड चेन के साथ एक्टिव साइट पे वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, साथ में प्रोटीन के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव। अगर कोफैक्टर रिमूव कर देंगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं रहेगी, कोफैक्टर मस्ट है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of enzyme। तो अगर आप कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे, एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव नहीं रहेगा, जो इस बात का द्योतक है, इस बात का इंडिकेशन है कि एंजाइम के प्रॉपर काम करने के लिए कोफैक्टर इसेंशियल है, ज़रूरी है, क्रूशियल है। यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर हुआ ख़त्म, बायोमोलिक्यूल्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए, क्वेश्चन मैंने साथ में आपको कॉपी कराए हैं। और अब हम लोग बात करें लास्ट 5 ईयर के इसके क्वेश्चंस की। देखिए, वो एंजाइम जिसमें केवल प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टर नहीं होता, उसको हम लोग सिंपल एंजाइम बोलते हैं। जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो सिंपल एंजाइम जहाँ पे केवल प्रोटीन है, उसका कोई एग्जांपल आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। ठीक है, याद रख लीजिएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, याद रख लीजिए। कॉन्जुगेट एंजाइम वो एंजाइम जिसमें आपका प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर, दोनों मिल गए तो बन गया होलो एंजाइम। देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ से ले लीजिए, आपको उसमें डाइजेशन में भी काम आएगा। पीएच पे अलग अलग पीएच, ऑप्टिमम पीएच पे तो हमारा पेप्सिन को पीएच कितना चाहिए, नियर अबाउट 1.8 to 2 चाहिए। सुक्रोज को चाहिए पीएच 4.5 पीएच, उसका 4.5 जो है ऑप्टिमम पीएच है। सलाइवरी एमाइलेज 6.8, ट्रिप्सिन 8.5। ये वाले यहाँ से आप पॉइंट ले लो, अच्छा पॉइंट है। कोएंजाइम क्या है भाई, तो कोएंजाइम हमारा एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 तरह का, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ट्रांजिट जुड़ता है, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनस ग्रुप दैट इज एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रुप दैट इज एसेंशियल होगा तो ऑर्गेनिक ही, सेम एंजाइम फाउंड अदर देन वन, तो ऑप्शन ए ठीक है, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन ग्रुप दैट इज एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ मैंने कहा आप लोग को लगवा दूं। मैनी एंजाइम आर सिक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट किसको करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है सेल प्रोटीन्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल मेम्ब्रेन को, किसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटीन्स को प्रोटेक्ट करना है। तो आंसर है प्रोटीन। प्रोटीएज जो है, ज़्यादातर प्रोटीन जो डाइजेस्टिव है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं ज़्यादातर, तो प्रोटीन को हम लोग कराना चाहते हैं प्रोटेक्ट। व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर विटामिन नहीं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन नो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये भी नहीं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, राइबोजाइम प्रोटीन नहीं है, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, हम लोग इसको टिक करेंगे कि सभी एंजाइम जो है प्रोटीन नहीं है। अ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच फॉर्मली बाय कोवैलेंट लिंकेज टू एपो एंजाइम, जो फॉर्मली अटैच होता है वो क्या है, वो है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट वो है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो बड़ा उससे फॉर्मली अटैच है। Part of active site of enzyme which is involved in substrate holding is known as, part of active site of enzyme which is involved in the substrate holding is known as, तो हमारा जवाब हो जाएगा
बटरसिंग ग्रुप, ये आपका ये लो, ये आपका जो है NCERT के बाहर का है, छोड़ो इसको हटा सकते हो ऐसे ही। बटरसिंग ग्रुप होता है, छोड़िए हटाइए, ये नहीं आएगा क्वेश्चन हमको। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फॉर्म, एक्टिव साइट किससे बनी है एंजाइम की, तो पूछ रहा है एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फॉर्म्ड ऑफ R ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिव साइट R ग्रुप अमीनो एसिड की बनी होती है, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहो तो लिख लो। R ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड से एक्टिव साइट बनती है, तो एक्टिव साइट इज फॉर्म R ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। ईच एंजाइम हैज स्पेसिफिक रीजन फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट R ग्रुप ऑफ 3 to 12 अमीनो एसिड। तो आप यही लिख लो, R ग्रुप से बनी होती है, इतना ज़्यादा डिटेल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम तो टोटल इनॉल बोल रहे थे, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट को बोल रहे थे कोफैक्टर, हम लोग बोल रहे थे उसको क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 तरह का, PCM, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटालाइन। ये देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। होलो एंजाइम इज द कंप्लीट एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ एन एपो एंजाइम, ठीक बात। कोफैक्टर, ठीक बात। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। एपो एंजाइम प्रोटीन है, एपो एंजाइम प्रोटीन है। एपो एंजाइम नॉन प्रोटीन है, नो। एपो एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन है। कोफैक्टर हमारा नॉन प्रोटीन है, तो आप इसको क्या करेंगे, ए वाला हमारा आंसर ठीक है, ए वाला आंसर हमारा ठीक है कि एपो एंजाइम प्रोटीन है, कोफैक्टर हमारा नॉन प्रोटीन है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स, चलिए। द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड नॉट फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, ठीक बात है। केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट डज नॉट ब्रेक डाउन टू फॉर्म न्यू एंजाइम प्रोडक्ट, ब्रेक डाउन होता है। द एंजाइम रिलीजेज द रिएक्शन and runs through the catalytic cycle once again, releases the product and reaction once again run होता है। तो B और D वाले को टिक कर लीजिए, हमारा सही है स्टेटमेंट। हाँ, B और D हमारे स्टेटमेंट सही हैं। उसने पूछा था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपके A और C हैं और B और D आपके राइट स्टेटमेंट हैं। मैंने आपको बोला B और D राइट स्टेटमेंट के संदर्भ में, उसने पूछा रॉन्ग कौन से, A और C रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे। competitive inhibition is due to, competitive inhibition is due to substrate analog, सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है तो उसको कम्पिटिटिव, कंपटीशन लगा रहा कि मैं इस पे बैठूंगा, नहीं मैं तुमसे बड़ा, नहीं मैं तुमसे बड़ा, मैं पीता हूँ रोज कॉम्प्लान। वो कह रहा मैं एक्टिव साइट पे बैठूंगा इनहिबिटर, ये कह रहा मैं एक्टिव साइट पे बैठूंगा। उनके बीच में हो रहा कंपटीशन, क्योंकि दोनों के रूप एक दूसरे से मिलते हैं। साइनाइड कॉजेस इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दिस इज ड्यू टू, ये वाला इंपॉर्टेंट है। साइनाइड किलिंग हो जाती है, क्यों किलिंग हो जाती है, क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो हमारा क्रेब साइकिल नहीं होगा, एटीपी नहीं होगा, एटीपी नहीं होगा तो हमारे एनर्जी नहीं बनेगी, तो हम डाइड हो जाएंगे, ठीक है जी। साइनाइड इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय कंबाइनिंग विथ आयरन within the enzyme, which results in the prevention of transport of electron from cytochrome oxidase to oxygen। जो हमारा लास्ट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम AA3 जिसमें है, इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऑक्सीजन को मिलेंगे नहीं, क्रेब्स है तो हमारा ETS नहीं होगा, ETS नहीं होगा तो ETS नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। तो कंबाइंस विथ आयरन, cyanide causes irreversible inhibition of cytochrome oxidase, this is because it combines with iron, या आयरन के साथ combined हो जाता है। सल्फोनामाइड was used to treat microbial infection, बताया था आपको, ये पिछले लेक्चर में समझाया था। सल्फोनामाइड्स जो हैं ये कैसे हैं हमारे, ये हैं आपके कम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल, सल्फोनामाइड ड्रग्स। तो ये क्या करती हैं,
ये पैरामिनोबेंजोइक एसिड के साथ कंपटीशन करती, फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होने देती। फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा, डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा, डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन नहीं होगा। तो सल्फोनामाइड क्या कर रही हैं, competing with पैरामिनोबेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होने दिया, फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं हुआ, डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हुआ, डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हुआ, सेल डिवाइड नहीं हुई, बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ा। तो बैक्टीरिया जो 2, 4, 8, 10 आपकी बॉडी में बाहर से आ गए थे, आपका इम्यून सिस्टम उनको मार गिराएगा। और अगर उनको अंदर आगे बढ़ने का मौका मिल गया तो आपका इम्यून सिस्टम हार सकता है बैक्टीरिया से बाजीगर में बाजीगर। हाई फीवर इज डेंजरस टू ह्यूमन बॉडी। हाई फीवर जो है 103, 104, 105 बुखार हम लोग के लिए डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे एंजाइम है डीनेचर्ड हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे, कोल्ड पे कम पे वो प्रिजर्व हो जाते हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफन रिजल्ट्स इन नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन हो रहा। चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर, नो। ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट, ब्लॉकिंग नहीं हो रही, एक्टिव साइट को ब्लॉक कंपटीशन में ही होता। नॉन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोफैक्टर। हाँ जी, तो क्वेश्चन है नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफन रिजल्टिंग क्या होगा। ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट नहीं होगा। एक्टिव साइट को कौन ब्लॉक करता है? कम्पिटिटिव में। इसमें क्या है कि 2 साइट अलग अलग है। एक्टिव साइट पे तो सबस्ट्रेट बैठ रहा है, लेकिन जो इनिबिटर है वो दूसरी कहीं अटैच हो रहा, वो आपस में कंपटीशन नहीं कर रहे। सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बैठ रहा, अटैच हो रहा है, और जो इनिबिटर है इनिबिटर साइड चेन से कहीं और अटैच हो रहा है नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर में। तो जब ये साइमल्टेनियसली अटैच होते हैं, मतलब सबस्ट्रेट हमारा बैठा एक्टिव साइट पे और ये बैठा इनिबिटर जो कर रहा है नॉन कम्पिटिटिव, वो किसी और जगह पे साइड चेन पे कहीं भी अटैच हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस कर देते हैं एंजाइम में। एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता और एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाता। तो नॉन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, दैट इज़ नॉट करेक्ट, सिंथेसिस होगा। ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट, ब्लॉकिंग का मतलब होता कि सबस्ट्रेट की जगह इनिबिटर आके अटैच होता, ब्लॉकिंग भी नहीं कर रहा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोफैक्टर, दैट इज़ आल्सो नॉट द रीज़न। रीज़न ये है कि एंजाइम में स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ को एंजाइम एक्टिविटी, निकोटिनामाइड में होती है। निकोटिनामाइड में हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट को एंजाइम एक्टिविटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें को एंजाइम एक्टिविटी नहीं है। विटामिन बी में है, थियामिन में है, राइबोफ्लेविन में है, बायोटीन में नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन बायोटीन पे नहीं होती। चलिए अच्छा, इनको मैच करिए। लाइगेसिस का क्या काम था? लाइगेसिस जोड़ रहे थे, कट एंड जोड़ते डीएनए के। ट्रोपोआइसोमरेज का क्या काम था? अनवाइंड करेगा सुपर कॉइल ऑफ डीएनए। तो ए के अपोजिट आप लिख लो आर, बी के अपोजिट लिख लो पी। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जाइमेज क्या करेगा? फर्मेंटेशन करेगा। RPQT, RPQS दे रखा है, RPQT ये वाला आपका आंसर हो गया। राइबोजाइम डिस्कवर किसने की है, ये पूछ रहा है। पता किसने डिस्कवर की है राइबोजाइम? तो राइबोजाइम किसने डिस्कवर किया? राइबोजाइम डिस्कवर किए थे कूने ने। लिख लीजिएगा, पूछा ना जाएगा वैसे। आर्जिनोसक्सिनेज, आर्जिनोसक्सिनेज किसका एग्जाम्पल है? Arginosaccinate catalyzes the formation of arginine and fumarate form arginosaccinate, the last step in the biosynthesis of arginine। तो ये हमारा एग्जाम्पल है किस? तो आर्जिनोसक्सिनेट हमारा एग्जाम्पल है लाइएज का। रिमूवल कर देगा ग्रुप, लिविंग बिहाइंड 2 डबल बॉन्ड्स पीछे छोड़ देगा। तो लाइएजेस का एग्जाम्पल होता है हमारा आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। कई सारे आपको मैंने लगवा दिए हैं क्वेश्चन, बाकी के आप अपना देखो, लगाओ क्वेश्चन।
क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग, ये वाला देखो, ये आखिरी लगवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपना करते रहना। दिस ग्राफ शो द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, ये वाला। अब पूछा अगर एंजाइम इसमें रोल आ जाए तो कौन सा ग्राफ होगा, एंजाइम की प्रेजेंस में या एंजाइम के बगैर है। तो भैया एंजाइम की प्रेजेंस में शुरुआत यहीं से होगी, एंड यहीं से होगा, बट ये जो स्टीप है ये कम हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर है, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती, इसमें देखिए इसमें तो एक तरह से बढ़ रही है। इसमें आपका ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट को यहाँ पहुँचा दिया और इसमें बराबर हो गया। तो ये तो हो ही नहीं सकते, इन दो में हो सकता था। तो पहले इसने इसको ऐसे दिखा दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी एक तरह से बढ़ गई, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो हमारा उसने पूछा, एक आपको ग्राफ दिया है जब एंजाइम की प्रेजेंस नहीं है, एंजाइम की प्रेजेंस में कौन सा ग्राफ इस इक्वेशन के लिए सूटेबल है, ये वाला है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एंजाइम की प्रेजेंस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। तो बहुत क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं, अब आप लोग इसको खुद ही करो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए, ये चलिए और देख लीजिए। एंजाइम ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल बाय एस्टैब्लिशिंग कोवैलेंट बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल को कौन जोड़ता है, लाइगेज जोड़ता है। लाइगेज दो मॉलिक्यूल को जोड़ देता है। तो आंसर आपका है लाइगेज इन एंजाइम विच यूज्ड टू ज्वाइन टू मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आनंद आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ना आया हो तो भी कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को हिट कर दीजिए। और ना आया आनंद भैया आगे से ना देखना, लेकिन अगर आनंद आया तो आगे भी आप आनंद प्राप्त करते रहें, मेरे लेक्चर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रेस में बने रहें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। बायोमॉलिक्यूल आज ख़त्म और कल से हम लोग नया चैप्टर लगाते हैं। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।